موقع ملا کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں اور خدا کی حضوری میں مل کر پھر سے اس کے قدموں میں جھکیں، منت کریں۔ اور میرے عزیزو، بالکل یہ شادمانی، یہ خوشی ایمانداروں کے لیے واجبی ہے، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح دنیا میں آیا، اور دنیا میں آنے کا اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ تمام دنیا کو گناہوں سے آزاد کر کے نجات دے، اور انسانوں کو، نسل انسانی کو گناہ سے آزاد کرے، اور گناہ سے آزاد کرنے کے بعد اپنی بادشاہی کا وارث بھی بنائے۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ نجات کا شادیانہ پوری دنیا میں یسوع مسیح نے بجایا، اور آج دنیا اس کی نجات کے وسیلہ سے اس کے فرزند ہونے کا حق پاتی ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کلام اقدس میں سے، مجھے ایک حزقیل شروع صاحب کا گیت یاد آتا ہے۔ اس کے بول اس طرح سے لکھے گئے: ایک تارا چمکا ہے، ایک نور سا اترا ہے، ہر گلی گلی روشن، کیا خوب نظارہ ہے۔ تو یہ روشنی، یہ نظارہ جو ہے، اور یہ دیدنی نظارے اور روشنی اور قوت کا لباس جو ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا میں آیا، اور اس نے اپنے لوگوں پر بھی یہ نازل کیا۔ تو میرے عزیزو، آئے ہم کلام اقدس میں سے سیکھتے ہیں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اور اس کا 2 باب، دوسرے باب کی آیت نمبر 21 سے لے کر آگے تک پڑھیں گے۔ خداوند کے پوتر کلام میں مرقوم ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق اس کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے، کھولے اور غور کیے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہاں پر آج ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد 8 دن کے بعد جب ان کو ہیکل کے اندر لے جایا گیا، اور شریعت کے دستور کے موافق جو کام شریعت کہتی تھی کہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد اس کے لیے واجب ہوں، تو ان دستوروں کے مطابق یسوع مسیح کو ہیکل میں لے جایا گیا، اور وہاں پر وہ سارے رسمیں اور وہ سارے دستور پورے کیے گئے جو شریعت اس وقت کے اندر کہتی تھی۔ اور یہاں پر ہم جس بات پر غور کرتے ہیں وہ یہ ہے، آیت نمبر
25 के अंदर। और देखो यरूशलेम में शमून नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूल कुदस उस पर था, और उसको रूल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शख्स के बारे में ये बात लिखी हुई है कि वो एक रास्तबाज और खुदा तरस बंदा था और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। इसका मतलब कि वो उस पेशन गोई का मुंतजिर था जो इसराइल के हक में खुदावंद ने हजारों साल पहले अपने नबियों के वसीला से फरमाई थी। और वो पेशन गोई ये थी कि देखो खुदावंद आप हमारे लिए नजात का इंतजाम करेगा, और इस बात का वो इंतजार करते करते मुंतजिर था कि जब खुदा अपने इस कौल को पूरा करेगा और हम नजात को देखेंगे, और खुदा इसराइल के लिए नजात का इंतजाम करेगा और इसराइल को छुड़ाएगा। अब रूल कुदस के वसीला से उसको ये आगाही मिली हुई थी कि मेरा तुझसे ये वादा है कि जब तक तू अपनी आंखों से नजात को ना देख ले, तू हरगिज नहीं मरेगा। हालेलुया। और इस बात की तसल्ली और इस बात का मुंतजिर वो अपने आप को उस हैकल के अंदर इंतजार कर रहा है, इंतजार के अंदर अपनी जिंदगी को रखता है। और जब यीशु मसीह पैदा होते हैं, 8 दिन के बाद उनको ले जाया गया हैकल के अंदर, तो फिर जब उसने यीशु मसीह उस बच्चे को, जो उस बच्चे की हालत के अंदर थे, उसको अपनी गोद में लिया और उस चेहरे को देखा, और उसने अपने मुंह से ये अल्फाज दोहराए कि तू ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। अब वो तेरा वादा जो निजात दिखाने का मुझसे किया गया था, इसराइल के साथ किया गया था, जिसके हम मुंतजिर थे, वो वादा पूरा हो चुका है। अब मैं तसल्ली के अंदर हूँ, इत्मीनान के अंदर हूँ। अब अपने कौल के मुआफिक मुझे अपने पास बुला ले। तो मेरे अजीजों, कलाम अक़दस ये बयान करता है नजात के बारे में। यशायाह नबी पेशन गोई करता है, पस 12 बाब की 3 आयत के अंदर, पस तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे। हालेलुया। ये भी एक पेशन गोई जो यशायाह नबी ने यीशु मसीह के हक में कही कि तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे। यानी जो मुंतजर है निजात पाने के, जिनको निजात चाहिए और जिनकी जिंदगियां निजात पाने के लिए तरस रही हैं, मुंतजर हैं, उनको निजात दी जाएगी और निजात के चश्मों से भर भर कर उनको दिया जाएगा और वो निजात पाएंगे। और सबसे जबरदस्त बात जो हुई है, कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है कि जब फरिश्ता आकर लोगों को बताता, गडरियों को और वली यूसुफ को बताता, मुकद्दसा मरियम को यह बात बताता है, और फिर वो सितारा जब मजूसियों को इस बात की गवाही देता है, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश के लिए खुदा ने दुनिया के तमाम चीजों को हरकत के अंदर ले आया और तमाम चीजों को यीशु मसीह की बशारत और खुशखबरी देने के लिए दुनिया के अंदर तमाम चीजों को इस्तेमाल किया है। और मेरे अजीजों, ये बात बड़ी जबरदस्त है कि जो बात सहीफों के अंदर पेशन गोइयों के लिए लिखी हुई है कि वो नजात दहिंदा होगा, वो नजात देने वाला होगा, वो अब जब पूरी हो रही है, तो उस बंदे ने भी, उस शख्स ने, उस बुजुर्ग ने भी, जिसका नाम शमून था, उसने भी अपने मुंह से इकरार किया कि हाँ, मैंने तेरी निजात देख ली है। अब हम देखते हैं, यहां से सीखते हैं कि दस्तूर ये था शरीयत का कि जो बच्चा पैदा हो 8 दिन के बाद उसको हैकल के अंदर ले जाकर उसका नाम रखा जाए, खतना किया जाए और उसको बरकत दी जाए और उसके लिए दुआ की जाए। तो हम देखते हैं कि इससे पहले उस बुजुर्ग की उम्र चाहे 100 साल से ऊपर होगी या कितनी भी उम्र होगी, उसने अपनी जिंदगी के अंदर कितने ही बच्चों को बरकत दी होगी, कितने ही बच्चों को रोज बरोज उस हैकल में
लोग लेकर आते होंगे, और कितने बच्चों को देखता होगा, कितने बच्चों के चेहरों को देखता होगा, और कितने बच्चों को दुआ देता होगा, बरकत की दुआ देता होगा, और उनके नाम रखे गए होंगे। मैं कहता हूं कि अनगिनत एक दिन के अंदर शायद उसे 500 या 300 या 250 बच्चे लाकर उसको दिए जाते और वो बरकत देता और सलामती की दुआ देता और उनके चेहरों को देखता। और उसकी जिंदगी के कितने ही साल ऐसे गुजर गए, लेकिन जब खुदा का बेटा हैकल के अंदर ले जाया गया तो जब उसका चेहरा उसने देखा तो उसने पहचान लिया। ये कैसे हुआ? रूह के वसीला से, रूह की हिदायत के अंदर उसको बताया गया कि इससे पहले तुमने चेहरे देखे हैं बच्चों के, अब ये चेहरा जो दिखाया जा रहा है यही निजात का चेहरा है। और उसने अपने मुंह से कह दिया, इकरार कर लिया कि हाँ, आज मैंने तेरी निजात को देख लिया। तो मेरे जीजों, हम ये सीखते हैं कि जब हम निजात को पा लेते हैं, निजात को देख लेते हैं, तो शादमानी आ जाती है और खुशी की लहर दौड़ जाती है और खुशी इंसान के अंदर समा जाती है। और फिर अमाल की किताब के अंदर 4 बाब की 12 को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। एक ही ऐसा नाम था, एक ही ऐसी शख्सियत थी, एक ही ऐसा नाम दिया गया दुनिया को, जो नाम जिसके बारे में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से कहता था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इस नाम के अंदर निजात थी। ये नाम वसीला सा दुनिया को निजात देने का और यही छुड़ाने का वसीला सा। इसके अलावा, इस नाम के अलावा दुनिया को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से दुनिया निजात पाती। परसों फैक्ट्री के अंदर एक भाई कहते हैं, जी आपकी क्रिसमस आ रहा है, बड़ी खुशियां हो रही हैं, हम देखते हैं बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। तो मैं जानता हूं कि आपकी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मेरे बाद एक आएगा, उसको तुम कबूल कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैंने कहा, भाई जी, मैं सारी बाइबल मुकद्दस को जानता हूं, कहीं पर किसी के बारे में नहीं लिखा गया सिवाय खुदा के रूह के बारे में, जो उसका अपना रूह है उसके बारे में गवाही देता है। किसी के बारे में पेशन गोई नहीं की। पेशन गोइयां और सारी गवाहियां यीशु मसीह के बारे में थी, और सारी सेम टू सेम बातें जो नबियों ने पेशन गोई के बारे में कही थी और पेशन गोई के अंदर बयान की थी कि वो ऐसा होगा, वो ऐसे करेगा, वो इस तरह से चलेगा, वो ऐसे मौजूद करेगा, वो इस तरह के काम करेगा। वो सारी की सारी पेशन गोइयां यीशु मसीह के अंदर पूरी होती हैं। कोई नबी, कोई रसूल ऐसी पेशन गोइयों को हासिल नहीं करता और उसके अंदर पूरी नहीं होती सिवाय यीशु मसीह के। तो मेरे जिदो, हमारे लिए ये शादमानी की बात है, हम पुराने अहदनामे की सारी पेशन गोइयां इकट्ठी करें और नए अहदनामे में यीशु मसीह की सारी जिंदगी के काम इकट्ठे करें, तो सेम टू सेम सारी चीजें पूरी होती हैं और यीशु मसीह ही निजात है। इस बात की गवाही शमौन बुजुर्ग अपने मुंह से करता है कि आज मैंने तेरी निजात को देखा। इससे पहले हजारों चेहरे देखे बच्चों के, लेकिन आज जो चेहरा देखा है वही निजात का चेहरा है। मेरे जीजो, मत्ती की इंजील 18 बाब के 11 आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। बहुत सारे नबी, रसूल, पैगंबर दुनिया में आए और जितना हिस्सा उनको दिया जाता था उतना पैगाम दुनिया को देकर चले जाते, लेकिन किसी के बारे में, किसी के नाम के साथ ये बात नहीं लिखी गई कि वो निजात दहिंदा है, दुनिया को छुड़ाने वाला, दुनिया को बचाने वाला और दुनिया को निजात देने वाला, सिवाय यीशु मसीह के। और दुनिया का निजात दहिंदा यीशु मसीह, उसके बारे में पेशन गोइयां दी गई। हम एक हवाला और पढ़ते हैं जिसमें यूहन्ना मनादी करता है, तौबा की, तो जब मनादी करता है तो वो भी इस बात की गवाही देता है। लूका की इंजील 3 बाब की 2 आयत से आगे तक पढ़ेंगे और लिखा है, और हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे। उस वक्त
खुदा का कलाम बियाबान में ज़करिया के बेटे यूहन्ना पर नाज़िल हुआ और वो यरदन के सारे गिरदोनवाह में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करने लगा, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा। और ये पेशन गोई जब वो मुनादी करता है तौबा के लिए, लोगों को कहता है कि अपने रास्ते सीधे बनाओ, अपने आप को बदलो, तौबा करो और तौबा के बाद निजात को हासिल करो। और जब ये बातें लोगों से बताता है तो वो पेशन गोई ऐड करता है यशायाह नबी की, कि वो कहता है कि वो वक्त आ गया है कि जब हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक टीला नीचा किया जाएगा और हर एक रास्ता हमवार किया जाएगा। और उसने अपने मुंह से कहा कि मैं तो पानी के साथ तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बहुत बड़ा है, वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। और उसने भी इकरार किया कि वो मुझसे बहुत बड़ा है और वो जोरावर है और वो निजात देने के लिए दुनिया में आ रहा है। अब दाऊद के बारे में भी कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, यहूदियों से कहते हैं कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। तुम्हारा बाप दाऊद भी, यहूदियों से कहता है कि तुम्हारा बाप दाऊद भी मेरा दिन देखने और खुश होने का ख्वाहिशमंद था। और वो कहते हैं कि अभी तेरी उम्र तो 30 बरस भी नहीं आई, तू कहता है कि मैं अब्राहम से भी बड़ा हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। यानी यूहन्ना की इंजील के पहले बाब को पढ़ें तो वहां पर यह तस्दीक होती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। यीशु मसीह पैदाइश के अंदर भी ये साबित होता है कि यीशु मसीह बनाए आलम से, जब दुनिया की अभी तख्लीक का काम हो रहा था तो यीशु मसीह बनाए आलम से ही वहां पर मौजूद था और यीशु मसीह अजली है। तो मेरे जीजो, कलाम अक़दस के अंदर दाऊद ये बयान करता है 35 ज़बूर 9 आयत के अंदर, और वो निजात को पा लेने के बाद खुशी का इजहार कर रहा है और लिखा है, लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। और पहले यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम भी मेरा दिन देखने और उस निजात को पाने के बाद खुश खुश था और इसका मुंतजिर था। तो यहाँ पर वो किस बात को कह रहा है दाऊद, लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। तो सारी नबूवतें यीशु मसीह के हक में पूरी हो रही हैं। दूसरा ग्रंथियों का खत और दूसरे बाब की 15 आयत, ये खूबसूरत बात हम ईमानदारों के लिए कलाम में लिखी हुई है और हमारे सब बहन भाई जो ईमानदार हैं उनको कुव्वत और तकवीयत इस बात से मिलती है। हाँ जी, निकालिए। लिखा है, क्योंकि हम खुदा के नजदीक, कौन? क्योंकि हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। हम कौन हैं? कौन है? ईमानदार, यीशु मसीह के निजात याफ्ता और यीशु मसीह को निजात को पाने वाले और यीशु मसीह में शामिल होने वाले कौन है? मसीह की खुशबू हैं, जिनके दरमियान निजात पाने वालों और गुनाहगारों के नजदीक हलाक होने वालों दोनों के दरमियान मसीह की खुशबू की मानद बनकर चलते फिरते हैं। उनमें से किसकी खुशबू आती है? मसीह की खुशबू आती है। कभी आपने देखा बहुत सारे, आज मैं गाड़ी पर बैठकर टाउन से गुजर रहा था तो मैंने बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को देखा और ये बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे रंग बिरंगे फूल हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत और बड़े खुशनुमा हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, और जब हम उसको तोड़कर उसकी खुशबू को सूंघने की कोशिश करते हैं तो बाद दफा ऐसी उसकी खुशबू होती है कि वोमिटिंग आने की सूरत आ जाती है, लेकिन उसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत होती है।
और उसकी खुशबू क्यों नहीं होती। और बाज फूल ऐसे होते हैं कि अभी हम थोड़ी फासले पर भी हों, कुछ फासले पर भी दूर खड़े हों, तो उसकी खुशबू हमें दूर से आना शुरू हो जाती है। तो ये फर्क जो है फूलों के अंदर, देखने में खूबसूरत और खुशबू बिल्कुल नहीं होती। और जो खूबसूरत फूल होते हैं और जिनकी खुशबू होती है वो दूर से ही हमें सूंघने को मिल जाती है। गर्मियों के सीजन में हम जाते थे सारे भाई, सुबह सैर करने के लिए, बहनें भी जाती थी, और हम जब गुजरते थे कि मोतिये के फूल थे, उनकी खुशबू दूर से ही आने लगती थी। तो यहाँ पर जो बात लिखी गई है, क्योंकि हम निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। अब हमसे, हम दूर हों या नजदीक हों, जहां भी हों, जिस रास्ते पर से गुजर रहे हों, हमारे अंदर से खुशबू आनी चाहिए। और वो खुशबू कौन सी होनी चाहिए? यीशु मसीह की खुशबू होनी चाहिए। हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। अब मेरे जीजो, आखिरी हवाला पढ़कर हम खुदावंद के कलाम को वाइंड अप करते हैं। और ये भी एक पेशन गोई के हवाले से उसको पूरा करने के वसीला से, पूरा होने के बाद तस्दीक की गई है। लूका की इंजील पहले बाब की आयत नंबर 68 से हम शुरू करेंगे। वहां पर लिखा 68, 69 और 70, 71 आयत तक। खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उससे छुटकारा दिया। उसने क्या किया? अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। और उसके आगे लिखा हुआ है, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी हम को हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी। अब यहाँ पर लूका रसूल भी इस बात की तस्दीक कर रहा है, जैसा कि लिखा है कलाम अक़दस में, कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा और दाऊद के घराने में से एक सींग निकलेगा, बुलंद किया जाएगा। और इस बात की तस्दीक यहाँ पर हो रही है कि हमारे लिए निजात का सींग निकाला। किसने निकाला? खुदा ने निकाला। किसके जरिए निकाला? यीशु मसीह को निजात बनाकर उस सींग को निकाला। और खुदा ने अपनी निजात को कायम किया अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के बाद। तो मेरे जीजो, हम हर तरीके से सीखें तो यीशु मसीह इस दुनिया के लिए निजात बनकर आया, और वो निजात सिर्फ हम तक नहीं बल्कि गैर कौमों तक फैली हुई है। और यीशु मसीह मत्ती की इंजील 28 बाब के अंदर कहते हैं, बस जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दाओ, शागिर्द बनाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। और कलाम अक़दस में ये लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब ये हमेशा की जिंदगी निजात है, और ये निजात खुदावंद यीशु मसीह से हमें मिलती है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए निजात बनाकर भेजा और हमने निजात पाई। और जब हम निजात पा लेते हैं तो हम इस शमौन बुजुर्ग की तरह खुशी से ललकार कर ये क्या उठते हैं कि अब हमने निजात देख लिया है। और जो निजात को देख लेते हैं उनकी ज़िंदगी में डर और खौफ नहीं क्या रहता। किसी को पूछ लें, किसी बुजुर्ग को 80 साल 100 साल की उम्र में वो उन्होंने कही ना, बाबा जी हुण ते तुहाडी जिंदगी 80 साल 100 साल हो गई है, हुण ते लगदा है खुदा दी आवाज़ आई नहीं, तुसीं मारी जान। मैं कित्थे मरना है, हल्ले कित्थे मैं मरना है, हल्ले तो मैं चंगा भला। अगर ईमानदार उसे ये कहें कि खुदा की आवाज़, खुदा की मर्जी पूरी हो, ईमानदार कहता हाँ कोई मसला नहीं है। जब खुदा की आवाज़ आ जाएगी मैं हाजिर हूँ, क्योंकि उसके अंदर तसल्ली है इस बात की कि मैंने निजात को पाया हुआ है।
मैंने निजात हासिल की हुई है, यीशु मसीह को पाया हुआ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। अब मौत भी आ जाएगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब मैं मौत पाने के बाद, मरने के बाद उसकी बादशाही में देखूंगा तो उसका चेहरा देखूंगा। ये तसल्ली की बात होती है। लेकिन गैर ईमानदार ये कहता नहीं, मैं हाले किथे मरना। यहां पर वो बुजुर्ग कहते हैं, अब अपने कौल के मुआफिक सलामती से मुझे रुखसत कर दे, अब मुझे कोई डर नहीं, अब बुला ले मुझे, अब मुझे मौत में धकेल दे, अपने पास बुला ले, क्योंकि अब मैंने तेरी निजात देख ली है, मुझे कोई खौफ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से मुझे, आपको, हम सब को खुदावंद खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे, सलामती दे, और अपनी निजात में खुश होने और शादमान होने और उसमें तसल्ली पाने की बहुत ज़्यादा कुव्वत अता करे। आमीन।